بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ عزیزان ملت اسلامیہ پیش نظر این رو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے قسم خدا کی جو بات دل سے نکلے گی وہ بہت دور تک جائے گی آپ عرس پاک میں تشریف لائے ہیں آپ مدرسہ اسلامیہ میرا پور کو مضبوط کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں برکتیں دے آپ کی عمروں کو لمبی عطا فرمائے توجہ دیجئے جو کام دل سے ہوتا ہے وہ بات بڑی دور تک جاتی ہے بریلی کی سرزمین پہ ایک عاشق رسول ایک عاشق صادق جن کو دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے آج بھی یاد کر رہی ہے وہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے قلم چلاتے تھے اللہ اکبر کبیرہ کہ دنیا کو معلوم تھا ان کے قلم سے نکلنے والے الفاظ ان کے قلم سے نکلنے والے نام کے اشعار پوری دنیا کے اندر پہنچ جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ تو پتہ یہ چلا ہاں وہی آواز دور تک جاتی ہے جو دل سے نکلتی ہے امام احمد رضا نے اللہ اکبر کبیرہ جو بھی لکھا ہے عشق مصطفیٰ میں لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے پیار میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت قلم اٹھاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے جللہ تھوڑا سائیڈ ہو جاؤ یار بھئیہ آواز کم مت کرو تھوڑا بڑھا کے رکھو یار بھئیہ آپ کو پیسہ ملے گا سمجھ رہے ہیں آپ پیچھے سے پلا دو پیچھے والے سن نہیں رہے ان کو پلا دیجئے آپ یہ عشق رسول کا جام رہی ہے بیٹھے اسماعیل صاحب اچھا ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ امام اہل سنت قلم اٹھاتے ہیں تو آپ چائے پیو گے نا کیونکہ تقریر ہو رہی ہے نعت پاک ہوتی تو آپ سن دے بھی خیر یار دونوں چیزیں سننے کا مطلب ذہن بناؤ تقریر بھی سنو نعت بھی سنو آج یہی تو ہے لوگ مطلب کیا ہے اتنا اپنی طبیعتوں کے شکار ہو گئے بھئی طبیعت سے دین نہیں ہے مصطفیٰ کی شریعت کا دین چلتا ہے بے شک سمجھ رہے آپ ہم طبیعت والے ہو گئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے رات ایک اور مقام پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک مسجد کا نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور پھیر لیا گئے ہوئے دن وہ عصر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے ثواب و چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے یہ دن ہو بھلے دیوان کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے بولو رضا کی زبان تمہارے لیے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کل عزت کی عبادت کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناؤ 7 سنین جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں اللہ کی عبادت کا حکم دو انہیں اللہ کی عبادت سکھاؤ انہیں نماز کا طریقہ بتاؤ انہیں نماز یاد کراؤ وہم ابناء وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین اور جب یہی بچے 10 سال کے ہو جائیں تو اب ان کو ضربہ یضربو کی گردان کر کے تعدیبی کاروائی کر کے اللہ اکبر زجر و توبیخ کر کے مار کے ڈانٹ ٹپٹ کے اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول
रसूल कायनात ने फरमाया बच्चों पे सख्ती करो, पहले प्यार से नमाज सिखाओ, जब 10 बरस के बच्चे हो जाएं तो इनको नमाज सिखाओ, नमाज पढ़वाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाना रूम ने फरमाया कोहरा आ रहा है मत घबराइए, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मत समझिए कि यहाँ बैठेंगे कोहरे में तो बुखार आ जाएगा। मैं कहता हूँ बुखार नहीं, बल्कि मदीने वाले को प्यार आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बेड़ा पार हो जाएगा, मदीने वाले आका को प्यार आ गया। आप तो बैठे हैं 1-2 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए, आप मदरसा इस्लामिया के अंदर कभी आए तो सही। हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद खान साहब क़िबला बरकाती यहाँ ये रहते हैं, हजरत क़ारी नौशाद साहब क़िबला इस्माइली ये भी इस मदरसे के मुदर्रिस हैं। आप यहाँ आए तो सही, यहाँ पे अल्लाह अकबर कबीरा, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 15 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे कसम खुदा की रोजाना कोहरों से मुकाबला करते हैं, रोजाना ठंड से मुकाबला करते हैं। ये फजर में अल्लाह अकबर ठंडे ठंडे पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं। आप तो अपने नरम नरम गुदास बिस्तरों में आराम करते हैं। ये बच्चे रात को 9-9 बजे 10-10 बजे तक अल्लाह अकबर सबक रखते हैं, याद करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। और एक चीज मैंने मदरसा इस्लामिया मीरापुर में आने के बाद ये देखी, अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसा किसी भी उरूज पे हो, मदरसा कहीं तक हो, लेकिन अल्लाह अकबर यहाँ सिर्फ हाफिज ही नहीं बल्कि बाअमल हाफिज बनाए जाते हैं। यहाँ पे अदब भी सिखाया जाता है। हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब क़िबला, मुबारक हो आपके मदरसे में, इन कमेटी वालों को मुबारक हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, इन तालिबान उलूम नबविया को खाना खिला रहे हैं। मदरसे की भलाई के लिए आपने अपना पैसा भी पेश किया है। याद रखें कसम खुदा की, मैदान क़ियामत में जब आप इनकी खिदमत करके, तलबा की खिदमत करके आप दुनिया छोड़ के जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, उस दिन इंसान जो है अल्लाह अकबर कबीरा अपने भाई से भागेगा, वो उम्मी व अबी, अल्लाह अकबर अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, वह साहिबती ही अपनी बीवी से भागेगा, वह बनी ही अपनी औलाद से भागेगा। लेकिन आपने मदरसे के अल्लाह अकबर कुरान पढ़ने वालों को अपने दस्तरखान पे बिठा करके एक वक्त का खाना खिलाया होगा। रब फरमाएगा कुरान पढ़ने वाले जन्नत में दाखिल हो जा, ये कहेगा मौला मैं जन्नत में अकेला नहीं जाऊंगा, फुला आदमी ने घर पे दस्तरखान बिछा के मुझे एक वक्त का खाना खिलाया था। रब फरमाएगा कुरान के हाफिज क्या चाहता है, अल्लाहू अकबर कबीरा, वो कुरान पढ़ने वाला कहेगा या अल्लाह जिसने मुझे एक वक्त का खाना खिलाया था उसको भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और आप इस दुनिया के अंदर देखते हैं, आप डॉक्टरों के कलम का पावर भी देखते हैं। जब तक आपको हाथ नहीं लगाते, जब तक 1000 का पर्चा नहीं बन जाता, ये उनके कलम की ताकत है। आप वकीलों के कलम की ताकत भी देखते हैं कि मुकदमा आप अल्लाह अकबर करवाएं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो बाद में जज के पास हो जाते हैं, पहले आपसे 1000 रुपए की रसीद बना लेते हैं, इतना पैसा ऐसे चाहिए, पहले कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, बाद में लूट खसोट शुरू कर देते हैं, बाद में लूटना शुरू कर देते हैं। ये आलम है। वकील के कलम का भी पावर आपने देखा, डॉक्टर साहब के भी कलम का पावर आपने देखा, लेकिन ये जो कलम के पावर है, डॉक्टर हो, हकीम हो, तबीब हो, अल्लाह अकबर इंजीनियर हो, पायलट हो, ये जितने भी कलम वाले हैं, याद रखना इनके कलम के पावर है सिर्फ जमीन के ऊपर चला करते हैं। लेकिन ये जो कुरान के हाफिज हैं, आप इनको देखेंगे कसम खुदा की, आपने इनसे मोहब्बत की थी, आपने इनसे प्यार किया था और कोई खुश
नसीब यहाँ बैठा हो, उसने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया था, रसूल कायनात के दीन का सिपाही बनाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बनाया था। उसने अपने बेटे को मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे बेचा था। तो कान खोल करके सुन लो, जब वही बाप जिसने अपने पीछे हाफिज कुरान छोड़ा, जब उसका इंतकाल होगा, जब वो कब्र में जाएगा, मुनकर नकीर सवालात करके वापस चले जाएंगे, लेकिन ये इसका बेटा है जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। ये अपनी बाप की कब्र के सरहाने कुरान खोल करके बैठ गया। एक बेटा डॉक्टर है इस मरहूम का, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा तबीब है, एक बेटा वकील है, लेकिन ना तो वकील की वकालत काम आई, न डॉक्टर की डॉक्टरी काम आई। मरने के बाद किसी की अल्लाह अकबर डिग्री काम नहीं आई, मरने के बाद किसी का कलम काम न आया, लेकिन जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, वो मदरसे की टूटी चटाई पर बैठ के कुरान पढ़ने वाला। आज देखो बाप की मेहनत कैसे रंग लाई है। बाप की कब्र के सरहाने कुरान खोल के बैठ गया। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब के फरिश्ते भेजे थे, जैसे नहीं फरिश्ते गए हैं वापस आने लगे हैं। रब फरमाता फरिश्तों वापस आ जाओ। अरे देखते नहीं हो, मरने वाला कब्र में आने वाला अगरचे गुनहगार है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सदका जारिया के पैकर में बेटा छोड़ के आया है, जो इसकी कब्र के सराहने बैठ के मुझे रहमान कह करके पुकार रहा है, मुझे रहीम कह करके पुकार रहा है। फरिश्तों, जिसका बेटा कब्र के ऊपर बैठ के मुझे रहमान कह करके पुकारे, मैंने उसके बाप को बख्श दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, उर्से मुकद्दस जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद, हमारे पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिंदाबाद मदरसा जिंदाबाद, इस्लामिया मीरापुर, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। लेकिन आज हालात ये हैं, आप अगर कहो मदरसों में पढ़ने के लिए तो लोग भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग दुनियादार हो गए, पैसा चाहिए। दीन किसको चाहिए? दीन कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं है। बगैर दीन के गाड़ी चलेगी, कुछ नहीं चल सकती। मेरे भाई, ये दुनिया की जिंदगी कितने साल की है? 50 साल की है। देखो कितने कितने अमीर मर गए, कितने कितने कबीर मर गए, कितने कितने बड़े नेता मर गए, कितने कितने बड़े अल्लाह अकबर सांसद और विधायक चले गए, जिनकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे। कोई उन्हें याद करने के लिए तैयार है, कोई उनकी कब्र पे सलाम करने के लिए तैयार है। हज़रात गिरामी जिनकी बैठकों पर, जिनके मकानों पर पूरी पूरी रात अल्लाह अकबर दिन रहता था, कभी रात नहीं होती थी, ऐसी लाइटें जला करती थी। जिनकी गाड़ियों के आगे अल्लाह अकबर कबीरा, पीछे भी पुलिस होती थी, आगे भी पुलिस होती थी। आज की कब्र का निशान भी बाकी नहीं है, इसलिए कि कसम खुदा की आप जरा देख लें, कितने आए दुनिया के अंदर जिनकी मूंछों पे घी के चिराग जले, लेकिन खत्म हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारा, अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारा, रसूल कायनात की शरीयत के तनाजुर में गुजारा। आज भी जाकर के देख लो, कसम खुदा की अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पे सरकारे गरीब नवाज को जमाना हो गया दुनिया से पर्दा किए हुए, लेकिन जब दुनिया के ऊपर रहते थे, जमीन के ऊपर रहते थे, तब भी सरकारे गरीब नवाज का नाम जिंदा था। और आज कब्र के अंदर लेटे हैं, कुर्सी पर कोई बैठे, लेकिन दिलों पे हुकूमत अगर किसी की चल रही है तो वो अताए रसूल की चल रही है, वो सरकार गरीब नवाज की चल रही है। आप सरकार साबिर पाक को देख लो, आप मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देख लो, आप इमाम अहले सुन्नत को देख लो, कहीं और मत जाओ, बल्कि मीरापुर की सरजमीन पे आप आकर के देख लो, एक अल्लाह का वली लेटा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग अपने आरामगाहों को छोड़कर उसकी मोहब्बत में उसका उर्स मना रहे हैं। मौत वो है जिस पे करे ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आएंगे मरने। बहुत खूब, बहुत खूब। सभी आए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उर्स मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले अपनी जिंदगी शरीयत के दायरे में रसूल कायनात के कानून के मुताबिक, हुजूर के आईन के मुताबिक गुजार के जाते हैं। इनकी नस्लें भी आबाद रहती हैं, इनके नाम भी चलते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिक्के चलते हैं। ये अपनी मर्जी से काम नहीं करते, अल्लाह रसूल की मर्जी से काम करते हैं। ये शादी ब्याह भी करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक करते हैं। एक अल्लाह के वली अपनी बीवी से सोहबत भी करते थे, उनके बच्चे भी थे, खाना भी खाते थे, लेकिन अपनी तबीयत के लिए नहीं, बल्कि हुजूर की शरीयत समझ के अपनी बीवी से सोहबत करते थे। बच्चे होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मतलब ये है अल्लाह रसूल के फरमा बरदार बनेंगे और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह अपनी उम्मत पे फख्र करेंगे। हज़रात गिरामी, हुजूर की सुन्नत है निकाह करना, ये समझ के वो निकाह करते थे। वो खाना खाते थे, ये समझ के निकाह करते, खाना खाते थे कि खाना खाऊंगा और इस खाने से जो ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, अल्लाह की इबादत में सर्फ करूंगा। आज आदमी खाना खाता है, एनर्जी मिलती है तो उसे कहां कहां गलत कामों में इस्तेमाल करता है। लेकिन ये अल्लाह वाले उस एनर्जी को कुरान मुक़द्दस की तिलावत में इस्तेमाल करते हैं, नमाजों में इस्तेमाल करते हैं। वो से पाक 15 साल एक पैर पे खड़े होकर के कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक ने 40 साल इशा के वजू से नमाज फज्र को अदा किया है। ये अपनी एनर्जी खुदा की इबादत में लगाते थे, खुदा की इबादत में इस्तेमाल करते थे, कुरान पढ़ने में इस्तेमाल करते थे। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम्हें क्या हो गया है। मैंने जो कुरान पाक की तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाता उस आयत में कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, इन दोनों में से कोई एक या दोनों जब तुम बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो इनसे उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, ना इन्हें झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और इनसे अदब से बात करना, ताज़ीम व तकरीम इनकी करना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना। वरफ़द लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, बुढ़ापे में माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को बिछा दे, रब की बारगाह में अर्ज कर, वक़ुल रब्बिरहमहुमा, अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा, मेरी माँ पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम फरमाया है। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, आ जाओ, बेटा अपने माँ बाप का कितना कहना मानता है, कितनी खिदमत करता है, आप सब खूब जानते हैं। बाप हुक्म दे रहा है, बेटा मानने तैयार नहीं है, बाप खर्चा मांग रहा है, बेटा देने तैयार नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि बाप को मांगने की जरूरत न पड़ती, इसलिए कि उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। हज़रात गिरामी, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ अफजल होता है। मिसाल के तौर पर आप मुझसे कहें मौलाना मोबाइल चाहिए, मैंने आपको मोबाइल दिया, आपका हाथ नीचे था, मेरा हाथ ऊपर था, तो ऊपर वाला हाथ अफजल है, नीचे वाला हाथ अफजल है, यानी उसके हाथ उसके सामने उसकी औकात नहीं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, तुम्हारा बाप अफजल था, लेकिन तुम अपने बाप के सामने आला बन रहे हो, बाप के सामने बड़े बन रहे हो। बाप पैसा मांगता है और तुम देते हो, और देने के बाद अगले हफ्ते में बाप से हिसाब मांगते हो। पिछले हफ्ते में 1000 रुपए दिए थे, तुमने कहां कहां सर्फ किए, कहां कहां पे तुमने खर्च किए। अल्लाहु अकबर कबीरा, इस बेटे को ये मालूम नहीं कि सर के बालों से पैर के नाखूनों तक तो अपने बाप की प्रॉपर्टी है। तेरा बाप जिस तरह तुझसे पैसा ले, हज़रात जिस जगह चाहे चाहे इस्तेमाल करे, तुझे हिसाब लेने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे हिसाब मांगने का कोई हक नहीं है। कान खोल करके सुनिए, बाप ने पैसा मांगा था तो तुम्हें इस तरह नहीं देना चाहिए था, बल्कि अपनी जेब से पैसा लेते, अपने हाथों में रखते, इस तरह रखते, और रखने के बाद बाप के सामने पेश हो जाते और अपने बाप से कहते, वाली साहब जितने की जरूरत हो उतना उठा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपके
ہاتھ نیچے ہوتے، باپ کا ہاتھ اوپر ہوتا، اللہ کو پیار آ جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ پیر فقیروں کے چکر میں پڑے ہیں۔ پرانا مانے، توجہ کے ساتھ سنیں، پیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، ان کی تعویذ میں اثر ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک ہے مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے، جب وہ مظلوم دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ مظلوم کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ ایک ہے راستے کا مسافر، جب مسافر دعا کرنے لگ جائے تو اللہ مسافر کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا شخص ہے باپ، باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ اولاد کے حق میں والد کی دعا کو قبول پہلے کر لیا کرتا ہے۔ لیکن آج باپ کے ہاتھ چومنے تیار نہیں ہے، پیر فقیروں کی قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تو کہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، اگر ترقی چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، انداز زندگی بدل لو، اپنی گفتار بدلو، اپنی رفتار بدلو، اپنا کردار بدلو۔ جب اپنے گھر سے سفر کا ارادہ ہو تو اپنی ماں کے قدموں میں آنا، اپنے باپ کے قدموں میں آنا۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ جب سفر پہ نکلنے کا ارادہ ہو، والدین کے پاس آنا، باپ کے ہاتھ چومنا، ماں کے قدم چومنا، اور کچھ پیسے نکال کے اپنے ماں باپ کی جیب میں ڈال کے سلام کر کے سفر کرنا۔ ناظم رضا منظری ذمہ دار اسٹیج سے کہہ کر کے جانا چاہتا ہے، جو ماں باپ کی دعا لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، سلام کر کے گھر سے نکلتا ہے، وہ ناکام ہو کے واپس نہیں آتا ہے بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آتا ہے۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب میں گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مدرسہ اسلامیہ میرا پور، زندہ باد، ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، زندہ باد، اولیاء امت کانفرنس، زندہ باد، زندہ بستی باد، بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج بستی الشریعہ، بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ